الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ اب آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہے تاریخ اسلام میں ہم لوگوں نے تاریخ شروع کی ہے پہلی مخلوقات سے، عرش، لوح، قلم، زمین و آسمان، اور یہاں سے شروع کر کے ہم لوگوں نے پھر اب ملائکہ کی پیدائش کے بارے میں اور ان کے اوصاف کے بارے میں اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس بارے میں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ ابن کثیر سے، جو علامہ ابن کثیر نے تاریخ لکھی ہے، بہت زبردست، بہت ہی زبردست۔ وہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو اس سے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو تھوڑی سی، چونکہ یہ ذرا مشکل لکھا ہوا ہے اور پرانے زمانے میں لکھا ہوا ہے، تو اب ذرا آسان کر کے چیزیں آ رہی ہیں، تو میں آپ کو آسان کر کے جو ہے وہ پڑھانا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے ملائکہ کے بارے میں۔ تو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو ایک ہی، یعنی دو تین کتابوں سے آپ کو جو ہے نا آپ کو عقیدہ ملائکہ کے بارے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں، نوری جسم ہے۔ اب نور کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس قسم کے نور سے جو ہے نا یہ بنی ہے، لیکن یہ نوری مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ یہ بات، قدیم کیا ہوتا ہے؟ قدیم مخلوق کا الٹ ہے، یعنی اللہ جل شانہ قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے، یعنی کہ جب تھا بھی نہ تھا اس وقت وہ تھا، ٹھیک ہے جی، ازل سے بھی پہلے اور ابد کے بھی بعد۔ تو وہ ہم لوگ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ فرشتے بھی قدیم نہیں ہے، یہ بعد میں اللہ پاک نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے، کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اکثر لوگ جو ہے وہ بے شک قرآن مجید میں تو ہے نا پہلے پارے میں کہ یہ جو میکائیل کا دشمن ہو، جبرائیل کا دشمن ہو، تو وہ اللہ رسول کا دشمن ہے، یعنی اتنی سختی ہے، یعنی اتنے زیادہ سخت کا اس کے لیے جو ہے وہ حکم ہے۔ تو سر ہمارے جی لوگ تو جبرائیل اور میکائیل کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل علیہ السلام کو برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جو کرتے ہیں وہی ان کو حکم ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ روح قبض کرنی ہے تو وہ روح قبض کرنے کی ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ اللہ ہے، من جانب اللہ لگی ہوئی ہے۔ تو من جانب اللہ جو سر ہے، جی 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 ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ ہاں، یہ سوالات تو بہت اچھے ہیں، جی جی پلیز۔ سر جی وہ سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہے، یعنی نور سے بنے ہیں، ہاں تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نور السماوات والارض، ہاں جی، اور یہ یعنی اللہ سورج نور ہے، بھی، سورج بھی نور اس کی ہے۔ کیسے تطبیق کریں گے؟ دیکھیں سورج بھی، یہی تو میں نے کہا۔ اچھا اس کو ہم لوگ اچھا سے کر دیتے ہیں، سوالوں کو ہم آخر میں رکھ دیتے ہیں، یہ اچھا رہے گا، چلیں ٹھیک آخر میں سوال کر لیتے ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ تو نور کا میں نے پورا بتایا آپ کو، جب ہم نے نوری کی بات کی تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نور کی ڈیفینیشن بھی نہیں کر سکتے، چونکہ نور جو ہے وہ مختلف قسم کا ہے، جیسے ابھی سورج چاند ستارے بھی نور ہے، علم بھی نور ہے، اور جو ہماری لائٹ ہمارے پاس ہوتی ہے یہ بھی نور ہے، آنکھوں کی بینائی بھی نور ہے، اور دل کا نور بھی نور ہے، یعنی علامہ اقبال نے بھی یہ فرمایا۔ تو اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نور کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی ہم یہ پہلی کتابوں سے پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی، لیکن فرشتے نوری مخلوق ہے، یعنی کہ ان کا جسم ہے لیکن وہ نور کا بنا ہوا ہے، یعنی یہ جنات کی طرح نہیں ہے کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، یا یہ انسان نہیں ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ یہ نوری مخلوق ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی لیے یہ جو قدیم کا لفظ آیا تو یہ بھی خالق کے
मुखालिफत में आपको समझाने के लिए वो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी हमेशा जब भी नूरी लफ्ज़ इसका इस्तेमाल किया तो इसलिए इस्तेमाल किया ताकि इसके मुखालिफ सिमत जो है वो बंदा ना जाए। उससे रोकने के लिए आपको बता दिया जाता है कि ये ऐसी मखलूक है, यानी वो नहीं है, आपने वो नहीं समझना। तो यहाँ पर भी जो कदीम की बात की है और खालिक की बात की है वो उस तरफ जा रहा है कि अल्लाह की सिफात है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जो है ना कोई हमारी सिफात है, इंसानों की कोई सिफात है या अल्लाह ताला की कोई सिफत ऐसी है, ऐसा नहीं, बल्कि ये अलग से एक पूरी मखलूक है। जैसे इंसान है, जिन्नात हैं, ये फरिश्ते भी एक मखलूक है और ये मासूम है, गुनाह से पाक हैं और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये कुरान मजीद की आयत का मैं आपको तर्जुमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जी यहाँ सर। पर जो फरमाया किसी फरिश्ते की जरा सी बेअदबी भी कुफ्र है। मैंने उजास किया कि हम इसराइल अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते थे और ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, बिल्कुल भी। जरा सी बेअदबी भी कुफ्र है। ये फतावे आलमगीरी में लिखा हुआ है। फतावा आलमगीरी को फतावे हिंदिया भी बोलते हैं, हिंदिया। बाज लोग अपने दुश्मन को या सख्ती करने वाले को मलकुल मौत कहते हैं। ऐसा कहना नाजायज है, करीब कुफ्र है। फरिश्तों के वजूद का इनकार या ये कहना कि फरिश्ता नेकी की कुव्वत को कहते हैं, ये कोई कुव्वत है नहीं और इसके सिवा कुछ नहीं, तो ये बातें कुफ्र की हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये मुस्तकिल एक मखलूक है बाकायदा से। ये जो मैं पढ़ रहा था ये फिक है, कानून शरीयत से पढ़ रहा था। फिक की ये ब्रांच है और कानून शरीयत बड़ी अच्छी किताब है। सबके पास, तमाम खवातीन के पास ये किताब होनी चाहिए, कानून शरीयत के नाम से। वो छोटी सी किताब है। अब देखो ना, फरिश्तों का अकीदा जो है इतना सा एक पैराग्राफ में सारा बयान कर दिया। तो ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, सबके पास होनी चाहिए। छोटी सी किताब है, हर जगह से मिल जाती है। अब ये पढ़ रहा हूँ, ये बहार शरीयत से पढ़ रहा हूँ और ये उन्होंने क्या किया है बहार शरीयत में कि उन्होंने सारी किताबों का खुलासा जदीद यानी अंदाज में हमें दिया हुआ है। और ये दावत इस्लामी वालों ने भी इसको छाप के दोबारा से बड़ा अच्छा किया कि बड़े साफ सुथरा जो है ना वो लिख के खूबसूरत तरीके से और ज़बर ज़ेर लगा के, एराब लगा के उन्होंने छापा हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा है। मलाइका का बयान है, फरिश्ते अजसा में नूरी है। ये वही बात, शुरू वाली बड़ी बात। अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। कभी वो इंसान की शक्ल में जाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्ल में। अब अकीदा क्या होना चाहिए? पहला अकीदा, वो वही करते हैं जो हुक्म इलाही होता है। खुदा के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते, न कसदन करते हैं, न सहवन करते हैं, न खतन करते हैं। वो अल्लाह के मासूम बंदे हैं, हर किस्म के सगायर और कबायर से पाक हैं, छोटे बड़े गुनाह से पाक हैं। अब इसकी लिए सारी उन्होंने आयात भी लिखी। अब हदीस शरीफ में जो ऊपर जो हदीस शरीफ दी है उन्होंने, पहली हदीस वो हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलिकतिल मलाइका मिन नूरिन, अल्लाह पाक ने मलाइका को नूर से पैदा किया। बस यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे अइम्मा, जो उम्मत के अक्सर जो अम्मा है वो फरमाते हैं कि अन्नल मलाइका तो अजसामुन लतीफ़ा नूरानिया, कहते हैं ये जो मलाइका हैं ये नूरानी लतीफ़ बारीक किस्म के लतीफ़ नूरानी मखलूक हैं। इसी तरह आ, हाँ, शक्ल बदल लेते हैं तो वो हजरत दहिया कल्बी का आपने सबने नाम सुना होगा। तो वो सुहाबी रसूल हैं और उनको जो है वो जिब्राईल सलाम उनकी शक्ल में आया करते थे, तो फरिश्ते अपनी शक्ल बदल लेते हैं। ये हदीस शरीफ उस पर रिवायत है जो सही बुखारी की हदीस शरीफ है। तो कान जिब्रील याति नबी गालिबन अला सूरतिही, अक्सर औकात जो है वो दहिया कल्बी की जो है ना रज़ी अल्लाह ताला उनकी शक्ल में आया करते थे, लेकिन उसके अलावा भी आया करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की शक्ल में आते थे, बल्कि और भी जो ना वो बंदों की शक्ल लेते थे। जैसे वो मशहूर हदीस जिब्रील है जिसमें वो आते हैं और दीन सिखाते हैं, पूछते हैं कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। उसमें कोई उनको नहीं पहचानता, हालांकि वो भी इंसानी शक्ल में आए थे। तो ये उम्मे सलमा ने उनको देखा हुआ था, जिब्राइल इस्लाम को दहिया कल्बी की शक्ल में देखा हुआ था। अल्लाह अकबर। अनस ने भी यही फरमाया था, अनस ने भी। और भी बहुत सारी इस पे हदीस से सारी रिवायत है और सारी इस पे दलालत करती है। और ये जो फरमाया कि वो हुक्म की ताबे रहते हैं, वो यफ़अलून मा युअमरून, सूरह नहल की ये आयत है कि वो वही करते हैं जो उनका हुक्म होता है। सूरह तहरीम में फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है तो वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। ये सारी बातें और भी बहुत सारी जो है ना वो सारी जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना, वो असल में कुरान मजीद से अकीदा लिया हुआ है या अहादीस से लिया हुआ है सारा। तो हम मेन अकीदे को ही पढ़ लेते हैं, चूंकि वो भी ख़त्म नहीं होने वाला।
अच्छा जी, दूसरा नंबर अकीदा क्या है? उनको मुख्तलिफ खिदमत सुपुर्द हैं। बास के ज़िम्मे हज़रात अंबियाए कराम की खिदमत में वही लाना है। कभी किसी के मुतल्लिक पानी बरसाने का हुक्म है, किसी के मुतल्लिक हवा चलाना है, किसी के मुतल्लिक रोज़ी पहुंचाना है, किसी की ज़िम्मे माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाना है। अब ये सारी ऊपर आप देख रहे हैं, साथ में नंबर लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ये नीचे उसके हवाला जात हैं, वो अहादीस नकल कर रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हम पढ़ लेते हैं। और वो अक्सर आयात हैं और उसके बाद फिर अहादीस को भी जमा किया हुआ है, तो वो सारी लिखी हुई है यहाँ पे। लेकिन मैं ज़रा अकीदा हम पढ़ लेते हैं, मुख्तसर मुख्तसर फरिश्तों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज तारीख पढ़ रहे हैं, अकीदा नहीं पढ़ रहे। हम तारीख ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें अकीदा आ गया कि भाई फरिश्ते हैं क्या और ये कैसे पैदा किए गए। उसके बारे में हम अभी तारीख इब्न कसीर से भी पढ़ेंगे। तो कभी किसी के मुतालिक यह है कि बदन इंसान के अंदर तसर्रुफ करना है, किसी के मुतालिक इंसान के दुश्मनों से हिफाजत करना है, किसी के मुतालिक जाकिरीन का मजमा तलाश करके उसमें हाजिर होना है, किसी के मुतालिक इंसान के नाम आमाल लिखना है और बहुतों का दरबार रिसालत में हाजिर होना है, किसी के मुतालिक सरकार में मुसलमानों की सलातो सलाम पहुंचाना है। तो ये दुरूद शरीफ भी पहुंचाते हैं, अल्लाह का जिक्र भी पहुंचाते हैं, और इस तरह सारा काम ये करते हैं। नीचे सारी अहादीस लिखी हुई हैं। और ये सयाह फरिश्ते भी होते हैं। तो ये फरिश्तों को तकसीम है काम। बाज़ों के मुतालिक मुर्दों से सवाल करना है, किसी के ज़िम्मे कब्ज़ रूह करना है, बाज़ों के ज़िम्मे अजाब करना है, किसी के मुतालिक सूर फूंकना है, और इनके अलावा और बहुत सारे काम हैं जो मलाइका अंजाम देते हैं। अकीदा नंबर 3, फरिश्ते न मर्द है न औरत है। ये बहुत ज़रूरी बात है। ये कुरान से हमने ये काफिर लोग कहते थे, मुशरिकीन कहते थे कि ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुम्हें कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी पैदा हो गई, तो तुम्हारा तो चेहरा ही बदल जाता है और अल्लाह के लिए बेटे पसंद कर लेते हो, कहते हो ये फरिश्ते जो है ये बेटियां हैं अल्लाह की। तो ये जो फरिश्ते हैं ना बेटियां हैं और ना ही बेटे हैं, ये मर्द नहीं है, ये औरत नहीं है, ये अलग से मखलूक हैं। इसको समझना चाहिए। अकीदा नंबर 4, उनको कदीम मानना या खालिक जानना कुफ्र है। यानी ये बहुत अहम है कि उनको कदीम नहीं मानना। कदीम का मैंने आपको बताया कि एक होता है हादिस, कल मैंने बताया था। हादिस का मतलब होता है जो बाद में पैदा किया गया है। अर्श, लोह, कलम, इंसान, जिनो इंस और ये सारे जमीन और आसमान, अफलाक, ये सब हादिस हैं। हादिस अकीदे के बाब में पढ़ेंगे ना, हादिस, तो इससे मुराद होगा मखलूक, हादिस। और इसका उल्ट आता है कदीम। अल्लाह की ज़ात ग्रामी है और सिफात हैं अल्लाह ताला की, वो कदीम है। कुरान मजीद भी कदीम है, अल्लाह की सिफत है, कलाम है। अकीदा नंबर 5 क्या है? उनकी तादाद वही जाने जिसने उनको पैदा किया। यानी अल्लाह ताला ही को पता है कि फरिश्तों की तादाद क्या है। और इस पे जो है ना आयत करीमा है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका, अल्लाह ताला जो है इल्लाहू, अल्लाह के, यानी वही जानता है, तुम्हारा रब ही जानता है कि उसके लश्कर क्या है, कितने हैं। वो अल्लाह ही को पता है, अल्लाह को पता है। तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। किसी फरिश्ते की के साथ अदना गुस्ताखी कुफर है, यह हम बात। मलेका को गाली देना और उनसे बुग़्ज़ रखना इंसान को काफिर बना देता है, जैसे कि पैगंबरों को बनाता है। पैगंबरों के साथ बुग़्ज़ रखना, पैगंबरों को गाली देना इंसान को काफिर बना देता है। इसी तरह जो है वो मलाइका को भी गाली देना, बुग़्ज़ रखना, ये जो है उसको बंदे को काफिर बना देता है। जाहिल लोग अपने किसी दुश्मन या मबगूज जिन पे गजब होता है को देख कर कहते हैं मलकुल मौत या इजराइल आ गया। ये करीब ये करीब ये जो कलमा है ये करीब कुफ्र है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। फरिश्तों के वजूद का इनकार या ये कहना कि फरिश्ते नेकी की कुव्वत को कहते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं है, ये दोनों बातें कुफ्र हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत लिखा हुआ था, आपने देखा कितना साफ सुथरा और तफसील के साथ और बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ है। ये बहार शरीयत में लिखा हुआ है। ये किताब भी बहुत बेहतरीन है, 2 जिल्दों में है। और इसको भी आप फिकी मसाइल के लिए और अकीदे के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन किताब है, अच्छी किताब। इसी तरह अब ये जो तारीख इब्न कसीर है, थोड़ी सी पुरानी किताब है ना, तो थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको दिखाई देगा। इसका प्रिंट भी आप देखें तो जगह जगह से जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। और अगर यही किताब अब छापेंगे ना दावत इस्लामी वाले, तो थोड़ा सा ज़बर ज़ेर लगा के खूबसूरत बना के फिर हार्ड में वो फिर आपको
देते हैं PDF में, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। ये शुरू में उन्होंने क्या किया, तख्लीक मलाइका और उनके औसाफ क्या हैं, ये अल्लामा इब्न कसीर फरमा रहे हैं। सर तो जी, फरमाया जी। सर जी इधर इन्होंने लिखे तख्लीक मलाइका अलैहिमुस्सलाम, हाँ जबकि बहुत बहस चलती रहती है कि जी अलैहिमुस्सलाम तो ये सिर्फ अंबिया के लिए मखसूस है और ये सारे। हाँ, नहीं वो, हाँ ये ऐसी है, मैं आपको मैं आखिर में इसका ये मुझे याद कराइएगा, बाद में आखिर बात करते हैं इस पे, ये बहुत अहम बात है ये। वैसे ये ऐसा नहीं है, ये तो वैसे ही उनको उनको ये अनपढ़ लोग ऐसे कहते हैं। अब इस पे बात करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इस बाब के आगाज में हम वो आयात कुरानी दर्ज कर रहे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने नसरानियों के बातिल अकीदे के नाउज के, यानी ये अकीदा के नाउज बिल्ला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं और सिफात इलाहिया और फरिश्तों के औसाफ का जिक्र फरमाया है। नीज यहाँ वो आयात भी पेश की जा रही हैं जिनमें अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज आसमानों पर अपने मुशाहिदात का जिक्र फरमाया है। ठीक है जी। तो ये फरमाया वक़ाल तख़ज़र रहमान वलदा, ये मुशरिकीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बच्चा बच्चा ले लिया है। सुबहाना, अल्लाह पाक पाक है इससे। बल इबाद मुकरमून, ये तो नेक मखलूक हैं, अल्लाह ताला की बंदे हैं। ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल व हुम बिअम्रिही यामलून, और ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, पहल नहीं करते नाफरमानी में, ना ही आगे बढ़ते हैं, और जो भी उनको हुक्म होता है उस पे अमल करते हैं। ये अकीदा हमारा होना चाहिए कुरान मजीद से। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तदा व हुम मिन खश्यतिही मुशफिकून व मन यकुल मिनहुम। तो ये सारी आयात हैं, और ये जो भी हमने अकीदे पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे अकीदे यहाँ पे उन्होंने दर्ज कर दिए हैं, और उन्होंने अर्श को उठाया हुआ है। जैसे हमने कहा ना कि फरिश्तों को तकसीम कर दिया गया है बहुत सारा काम, तो आप उसमें अर्श को उठाना भी है, वो वहां भी तवाफ कर रहे हैं, और नीचे भी तवाफ कर रहे हैं, आसमानों पर भी है। आसमान कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है, कोई जो है वो खड़ा है, क़ियाम में खड़ा है। तो आसमान जो है, आसमान में जगह नहीं है इनकी वजह से, कितने ज्यादा हैं। तो ये बहुत सारी आयत हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की, माशाल्लाह सुब्हानअल्लाह। 14 आयत करीमा जो हैं वो लेके आए हैं। इन आयात में, जैसा कि हमने सुतूर बाला में अर्ज कर दिया था, कि तख्लीक मलाइका के साथ उनके फ़राइज़ और औसाफ के अलावा मोमिनों और काफिरों के अमाल और क़यामत के रोज़ उनके जज़ा और सज़ा के बारे में किसी कदर वजाहत की गई है। ऐसी आयात कुरान शरीफ में जगह जगह हस्ब मौका कसरत से पाई जा रही हैं। इन आयात की मुकम्मल तफासिर हमने अपनी किताब तफसीर में की है, अल्लामा इब्न कसीर फरमा रहे हैं, और बताया कि इनमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक और इनके अवामिल और इनकी अजीम और मुख्तलिफ अशकाल का जिक्र वजाहत से फरमाया है। हमारे अलावा दीगर उलमा ने भी इन आयात की तफसीर में वजाहत की है। ये फरिश्ते मुख्तलिफ शक्लों में ज़मीन पर आते रहते हैं। खुसूसन जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वो आपकी खिदमत में मुतअद्दिद बार, कभी दहिया कल्बी की शक्ल में, कभी किसी आराबी, और कभी अपनी असली शक्ल में हाजिर होते। और ये भी इरशाद फरमाया कि उनके पर और बाजू 600 हैं जो मशरक से मगरिब तक फैल जाते हैं, और आपने उन्हें दर बार मुलाहजा फरमाया, दो बार या बार बार मुलाहजा फरमाया है। एक बार तो उस वक़्त जब वो आसमान से ज़मीन पर आपकी खिदमत में हाजिर हुए, और दूसरी बार शब मेराज में आपने उनके ये पर सिदरतुल मुंतहा के करीब देखे, जो जन्नतुल मावा के नज़दीक है। आप में से किसी को शौक होना अगर, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों के हवाले से, या उनकी जसामत के हवाले से, या फिर सिदरतुल मुंतहा के हवाले से एक तसव्वुर जो है ना वो जहन में ज़रा वाज़ेह हो जाए, उसके लिए फुरकान कुरैशी जो बड़ा बेहतरीन समझाता है इस हवाले से, उसका जो मैं चलो शेयर कर दूंगा, मैं देखता हूँ, और वो आप वो देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, इंतहाई बहुत मज़ा आएगा आपको, कि अब आप ये पढ़ेंगे ना, आप ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। तो ये सिदरतुल मुंतहा के बारे में और जिब्राईल सलाम के परों के बारे में, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, और वो कैसे बताता है, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैं भेजता हूँ आपको, मुझे याद कराइएगा, मायदा मुझे याद कराना। इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि, जिसमें अल्लाह ताला जल्ल शान हज़रत जिब्राईल के बारे में फरमाया कि अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ु मर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़क़िल अअला सुम्मा दना फतदल्ला। हाँ, इस हदीस मुबारक को मज़ेला आयत की रोशनी में हमारे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, जिसमें अल्लाह ताला ने जिब्राईल इस्लाम के जरिए शब मेराज मलाए आला में नाजिल फरमाई, लेकिन उसे औहा इला अब्दिही मा औहा फरमाया। ताहम इस इरशाद रब्बानी में इला अब्दिही से अहद वसल्लम की ज़ात मुबारक ही मुराद है, जो एक वाज़ेह सी बात है। ठीक, अभी तक वो बात नहीं आ रही, ठीक है।
सिदरतुल मुंतहा के बारे में भी एक बात आ गई कि वो 7वें आसमान पर है, लेकिन एक रिवायत में ये है कि इसकी जड़ 6ठे आसमान पर है और वहीं इसकी शाखें फूटी हैं, मगर इसकी बुलंदी 7वें आसमान तक गई है। नीज ये कि इसकी शाखें और पत्ते नूरी हैं, और चूंकि बदीही तौर पर ये नूर नूर खुदाबंदी है, इसलिए इसकी तफसीली ज़िक्र और सिफात के बयान से इंसान कासिर है। अब देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये नूर खुदाबंदी है, तो हम लोग इस नूर के तफसीलात बताने से कासिर हैं, हमें समझ नहीं आ सकती। यानी मैं अगर आपको कहूँ कि इल्म नूर है, तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है ना। रसूलुल्लाह नूर हैं, तो कैसे नूर है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे नूर है, अब मैं आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है ये बात समझने वाली है कि हमारी बात चीज़ें हमारी, बस हमें अकीदा दे दिया जाता है इजमाली तौर पर, और हमें उस पर यकीन रखना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। वैसे यहाँ इसका तफसील जिक्र भी बेमहल होगा। इससे कबल हम समंदरों और दरियाओं का जिक्र करते हुए एक हदीस के हवाले से बयान कर चुके हैं कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 4 दरिया निकलते हैं, जिसमें 2 तो जन्नत ही में हैं और 2 जमीन में नील और फुरात की शक्ल में बहते हैं। पता है आपको? तो मैं जब मिस्र में था, तो मिस्र में वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने तो सारा कदीम रखा हुआ है ना, सिस्टम बड़ा ही पुराना रखा हुआ है, ताकि वो जो है, वो जो कुछ भी है उनके पास, वो लोग आके देखते रहें, विजिटर्स आते रहें। सारा मुल्क इसी पे चल रहा है। तो कभी फिरौन की कहाँ से निकाल लेते हैं, कभी क्या मम्मी निकाल लेते हैं, कभी क्या निकालते रहते हैं। तो उन्होंने ये जब बात मैंने सुनी ना कि दरिया नील जो है ये जन्नतों से है, तो मैंने शायद ऐसी ही कोई बात होगी। बाद में देखा तो वो सही हदीस शरीफ में, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में, दरिया नील भी और फुरात भी ये जन्नत से निकले हुए हैं। वैसे तो अगर आप ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे तो ये विक्टोरिया लेक है तंजानिया में। अब अमीना अगर हो तो अमीना के मुल्क से है, और वो उधर जो है वो विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक से दरिया नील निकल रहा है, जो कि साथ साथ सारे मुल्कों को सैराब करते हुए सूडान में आता है। सूडान में 300 किलोमीटर पर ये बंद बना बना हुआ है, डैम बना हुआ है। और 200 किलोमीटर जो है वो मिस्र में अंदर है। ये 500 किलोमीटर पे ये डैम बना हुआ है। तो फिर वो अंदर आता है, फिर ये सारे लोगों को पानी देता है। तो ये उसके जन्नती होने की ये भी एक अलामत है। तो बहरहाल ये वहाँ से ही जो है ना ये निकलते हैं, ये सिदरतुल मुंतहा से ये नहरें निकलती हैं, फुरात की भी और नील की भी, दरिया नील की भी। अच्छा, हम ये क्यों चले गए, सिदरतुल मुंतहा पे चले गए हम, ये चाह रहा हूँ कि मैं हम जरा और पढ़ लेते। चलो, सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 4 दरिया निकलते हैं, 2 बातिनी और 2 ज़ाहिरी, जन्नत में हैं। और ज़ाहिरी दरिया ज़मीन पर दरिया नील और दरिया फुरात है। इन दरियाओं का जिक्र हम बहरों और दरियाओं के ज़िमन में पहले बयान कर चुके हैं। मज़कूरा हदीस में अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर के ज़िमन में इरशाद फरमाया, इसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, लेकिन वो फरिश्ते इसमें दोबारा नहीं जाते। बैतुल मामूर, आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो फरिश्ता आता है ना एक दफा, तो फिर दोबारा नहीं आता। इतना ज्यादा रश है फरिश्तों का, और इतना ज्यादा है इसकी तादाद, अल्लाह ताला को ही मालूम है कि उसके लश्कर कितने हैं। बैतुल मामूर के जिक्र के साथ आपने ये भी इरशाद फरमाया कि वहां मैंने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखा, जिनकी पुश्त बैतुल मामूर की तरफ थी। अल्लाह अकबर। बैतुल मामूर का जिक्र करते हुए हम पहले तफसीर में बता चुके हैं कि वो 7वें आसमान पर एक मस्जिद है। 7वें आसमान पे कह रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे बैतुल मामूर, जैसे खाना काबा जमीन पर है, ऐसे ही ये 7वें आसमान पर है। और ये हम अभी आगे बात करें। सुफियान सूरी और शाबा अबुल हवस जुबानी से अम्मार बिन हरब और सलीम, उन्होंने फरमाया, हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि वो आसमान पर एक मस्जिद है जिसे दर्राह कहा जाता है, और वो मस्जिद मस्जिद काबा की शक्ल की है, और आसमान में खाना काबा के ऐन ऊपर है। अगर ऊपर से कोई चीज गिरे तो ऐन खाना काबा पर गिरे। आसमान पर इसकी इज्जत और हुर्मत ऐसी है जैसे खाना काबा पर, जमीन पर, ये जमीन पर खाना काबा की है। इसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते जाते हैं, लेकिन वो वहां दोबारा नहीं जाते। ये 7वें आसमान के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। हम लोग जमीन की आसमान के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर है, यानी आखिरी आसमान जो ये जमीन के साथ है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। हाँ, फिर यही बात दोबारा उन्होंने एक और हदीस से भी बताई हुई है। कतादा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमसे बैतुल मामूर का जिक्र फरमाया और फिर दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि वो क्या है और कहाँ है। इसके बाद कतादा कहते हैं कि हमने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर आहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आसमान पर खाना काबा की शक्ल की एक मस्जिद है जिसे कोई सिर्फ एक ही बार देख सकता है।
اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز ادا کرنے جاتے ہیں، لیکن ایک بار کے سوا وہ جو ایک بار وہاں جا چکے ہوتے ہیں دوبارہ نہیں جاتے۔ تو آپ دیکھیں نا، انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ یہ بات ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو ملائکہ کا خانہ کعبہ ہے بیت المعمور، وہ تو ایک ہی دفعہ جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق عطا کرتا ہے کہ کچھ لوگ تو وہیں رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ہر سال جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، بارے دیگر نصیب ہو بیت اللہ شریف کا دیدار۔ تو لوگ جاتے ہیں، الحمدللہ مومن جاتے رہتے ہیں مسلسل۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ سبحان اللہ تعالی، ہم جاتے رہتے ہیں بار بار۔ اچھا، اسی طرح ضحاک کے خیال میں اسے یعنی بیت المعمور کو ابلیس اور ملائکہ نے جو اس کے ساتھی اور جن کہلاتے ہیں تعمیر کیا تھا۔ یہ ایک خیال یہ بھی ہے، ایک رائے یہ بھی ہے۔ متاخرین بیان کرتے ہیں کہ ہر آسمان پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک گھر بنا رکھا ہے، اور وہ اس میں باری باری یک کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ویسے ہی حاضر ہوتے رہتے ہیں جس طرح اہل ارض زمین ہر حج کے لیے ہر سال اور عمرہ کے لیے جب چاہیں خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر اس کا طواف کرتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے۔ ساتویں آسمان پر مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ساتویں آسمانوں اور زمین کے ساتوں طبقات پر جو حرم پاک تعمیر کیے گئے ہیں ان کی تعداد 14 ہیں، اور بیت المعمور جو آسمان پر تعمیر کیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے، اور چوتھا ہے جو زمین کی پیمائش سے 7 گنا بڑا ہے۔ ویسے ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک حرم تعمیر کیا گیا ہے۔ بیت المعمور کی عزت اور حرمت آسمان پر ویسے ہی ہے جیسے زمین پر بیت اللہ کی ہے۔ چلیں، یہ بھی بات ہو گئی۔ فرشتوں کی بات کے بارے میں دوبارہ آتے ہیں، اور اللہ کرے کہ آ جائے تو یہ فرشتوں ہی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بیت المعمور ہے، شاید اسی ذکر میں انہوں نے یہ باتیں بھی کر دی۔ اب ذرا ایک اور بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کے حوالے سے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے آسمان پر جو کچھ دیکھا وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے جو کچھ سنا وہ تم نہیں سن سکتے، کیونکہ اس سماعت کا حق آسمان تک محدود ہے۔ وہاں ہر جگہ 4 فرشتے 4 انگلیوں کی طرح ہیں، برابر مسجد میں مشغول رہتے ہیں، اور اس طرح وہاں بالشت بر جگہ باقی نہیں رہتی۔ میں جو کچھ جانتا ہوں اگر تمہیں بھی اس کا علم ہو جائے تو تم ہنسنے سے زیادہ رونے لگو، اور تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی اختلاط سے جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ کبھی نہ ہو، اور خوف عذاب سے ہم وقت اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید کرتے رہو۔ دیکھا آپ نے، یہ بہت پیاری حدیث شریف تھی۔ اللہ، یہ حدیث سننے کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کاش میں ایک تخت ہوتا جس پر عذاب نہ ہوتا، یعنی غیر مکلف ہوتا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث شریف میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی پر ایک قدم، ایک بالشت اور ایک بالش کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قیام، رکوع یا سجدے میں نہ ہو، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس روز بھی وہ سب کے سب کہیں گے ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا بجز اس کے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ بس دیکھا آپ نے، ان دونوں احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بحالت قیام اور رکوع اور سجود میں مصروف نہ ہوں، یعنی کچھ تو ان میں سے بحالت قیام ہے، کچھ بحالت رکوع ہیں، اور کچھ بحالت سجدہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور تا قیام قیامت اسی حالت میں رہیں گے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے ہر وقت دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تسبیح میں، تحلیل میں مصروف رہتے ہیں، اور اسی طرح قیامت تک یہی کرتے رہیں گے، اور ان کے یہ اعمال وہ ہیں جن کا انہیں خود اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے۔ رسول اللہ ایک دن اپنے صحابہ سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں جس طرح فرشتے اس کی عبادت کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں؟ آپ سے سن کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرشتے کس طرح صف بستہ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو اس کے بقول دوسرے انسانوں پر جو فضیلت دی ہے
وہ 3 باتوں کی وجہ سے دی ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے یعنی ان انسانوں نے جو خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے عبادت کے لیے ایک گھر زمین پر اسی شکل کا بنایا جیسے آسمان پر ہے۔ تو یہ ہم نے بھی یہ ہماری خاصیت ہے کہ شکر رب تعالیٰ کا کہ فرشتوں کے لیے جو گھر ہے اسی طرح کا گھر ہم نے زمین پر بھی بنایا ہوا ہے۔ ایک یہ دوسری بات یہ کہ ہم نے اسے پاک مٹی سے بنایا ہے۔ تیسرے یہ کہ ہم اس کی عبادت کے لیے فرشتوں کی طرح مساجد میں بھی اسی طرح یعنی صف بستہ خدا کے حضور حاضر ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ قیامت میں اس کے روبرو ہماری حاضری کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب۔ اللہ اکبر۔ تو بس یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کیا عقیدہ ہے اس کے؟ یہاں روح سے مراد چوتھے آسمان پر وہ فرشتہ ہے جو جملہ آسمانوں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ عظیم الجثہ ہے، اور ہر روز وہ تسبیح 12,000 مرتبہ پڑھتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور وہی قیامت کے دن صفوف ملائکہ میں سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ یعنی یہ روایت بہت ہی غریب ہے۔ چلو غریب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ ایسا بھی ہے جس کے لیے 7 آسمان اور زمین کے 7 طبقات ایک نوالے کی طرح ہے، یعنی وہ انہیں اللہ کے حکم سے اگر اسے حکم دیا جائے ایک نوالے کی طرح نگل سکتا ہے، اور اس فرشتے کی تسبیح ہے سبحانک حیث کنت، سبحانک حیث کنت، جہاں کہیں بھی ہو تیری پاکی ہے، تیری پاکی ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحانک حیث کنت، سبحان اللہ۔ ایک فرشتے کا ذکر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس فرشتے کا قد کاٹ یہ ہے کہ اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یہ بھی فرشتوں کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، ایسی کہ کان سے جو کندھا ہے وہ 700 سال کے مسافت پر ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سے 700 سال ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ 700 سال کی اس مسافت کو ابو داود اور ابن حاتم کی روایت حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پرندے کی 700 سال تک آہستہ مگر مسلسل پرواز کے بارے میں فرمایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القوا فرمایا، ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ان کی قوت کا یہ حال ہے کہ انہوں نے قوم لوط کے سارے شہر کو، جن کی تعداد 7 تھی، اور ان میں بسنے والی قوم لوط کو، ان کی عمارات اور ان کے تمام پالتو جانوروں اور ان کے جنگلات کے تمام درندوں اور حیوانات وغیرہ کو اپنے ایک پر اٹھا لیا تھا، لیکن جب انہیں لے آسمان کی طرف اتنے بلند ہوئے کہ فرشتوں کے کانوں میں وہاں کے کتوں وغیرہ کی آوازیں آنے لگی، تو انہوں نے ان تمام شہر کو مذکورہ بالا تمام چیزوں سمیت الٹ دیا۔ اعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان عذابوں سے۔ ہم عذاب ہمارے اوپر آتے رہتے ہیں لیکن ایسے عذاب نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے وسیلے سے، ان کی خاطر، ان کے صدقے سے ہم سے ایسے عذاب اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو اب ہمارے اجتماعی ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، انفرادی طور پہ آتا ہے، تھوڑا تھوڑا عذاب آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جبرائیل السلام کی باتیں یہاں کر رہے ہیں، وہ ہم نے ابھی پڑھی ہیں ساری کی ساری۔ سبحان اللہ۔ تو جبرائیل السلام کی بہت ساری یہ متفقہ بات ہے کہ آپ کے جو پر ہیں ہمیشہ مختلف الالوان، بہت سارے رنگوں میں ہوتے ہیں اور یوں چمکتے ہیں جیسے سچے موتی چمکتے ہیں۔ میں جو آپ کے ساتھ وہ کلپ شیئر کرنے والا ہوں فرقان قریشی کا، 1-2 ہوں گے، آپ وہ ذرا سنیے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا سن کے، اور شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر آپ نے توجہ سے سنا تو، اور اکیلے سنا تو آپ تو اللہ تعالیٰ خیر ہی فرمائے۔ بس یہ بہت مشکل ہے، بہت بہت ہی خوبصورت ہم نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا جب شب معراج میں جبرائیل علیہ السلام آپ کو رف رف پر سوار کر کے آسمان کی طرف مائل پرواز تھے، تو ان کا جسم طوالت میں زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔
अल्लाह अकबर। मैंने जिब्राइल को उनकी असली सूरत में सिर्फ 2 मरतबा देखा है, और ये देखा है कि वो अपनी खलकत के लिहाज से हर उस चीज से बड़े थे जो अपने जुस्से में जमीन से आसमान तक फैली हुई है। फरिश्ते, ये जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे जो खिदमत है वो है अम्बिया कराम के पास जाना और उनकी हिफाजत करना, उनकी खिदमत में रहना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है या बाकी फरिश्ते हैं, ये अम्बिया कराम के यानी खिदमत करते में लगे हुए हैं, ठीक है जी। बाज़ औक़ात उनको लोग उस्ताद कह देते हैं कि वो उस्ताद है उनके, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का पैगाम होता है जो कि पैगाम लेके आते हैं। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की एक रिवायत में मज़कूर है कि उर्वा ने एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज से, जो नमाज असर के बाद मुकम्मल सुकूत इख्तियार करते थे, कहा कि हज़रत सल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो वो आपकी इमामत में नमाज पढ़ते थे। उर्वा से ये सुनकर उमर इब्न अब्दुल अजीज बोले, ए उर्वा, जो तुम कह रहे हो मैं उसे खूब समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिशर बिन अबी मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबानी उनके वालिद के हवाले से सुना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल की आमद पर जब वो मुझे वही पहुंचा चुके और मुझे तसल्ली दे चुके तो मैंने उनके साथ 5 मरतबा नमाज पढ़ी है। और मसूद ने यह भी बताया कि आपने 5 मरतबा की बात अपनी उंगलियों पर गिन कर बताई। जहां तक इसराफील का ताल्लुक है तो हामिलीन अर्श में से एक फरिश्ता है जो अल्लाह ताला के हुक्म से 3 बार सूर फूंकेंगे। पहली बार सूर फूंके जाने पर बनी नौ इंसान चीख पुकार में पड़ जाएगी, जबकि शोर के दूसरी आवाज पर जो बादल की गरज से लाखों करोड़ों गुना तेज होगी, खौफ ज़दा होकर उनके दिल दहल जाएंगे, और उसकी तीसरी आवाज पर मुर्दे कब्र से निकल पड़ेंगे। ये इसराफील की बात हो रही थी, तो ये मुख्तलिफ किस्म के फरिश्ते हैं। अच्छा जी, आपकी जुबान मुबारक से ये सुनकर, अल्लाह, ये सुनिएगा कि आपकी जुबान मुबारक से जब ये बात सुनी ना इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने की, तो आपसे दरिया फरमाया, या रसूल अल्लाह, फिर हम क्या करें और क्या कहें? तो आपने फरमाया, ये करो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और ये कि अलल्लाहि तवक्कलना, ये पढ़ते रहो बस, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे साथ ही रहना है। इस दुनिया में भी, कब्र में भी, बाद में भी वो हमारे हाल को जानता है। बस अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी हमने, अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना हमने। अल्लाह अकबर। तो ये सारे मुश्किलात आसान हो जाएंगी, जितनी मुश्किलात हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात हमारे सामने हैं, वो सब आसान हो जाएगी, अल्लाह जल्ल शानहू का साथ रहेगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये पढ़ते रहना चाहिए। तो ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बहुत सारी यहाँ पर बातें हैं, और मुकर्रबीन फरिश्तों की भी बातें यहाँ पर बहुत सारी हैं, मिकाईल की बहुत सारी बातें। ये ये अल्लामा इब्न कसीर फरमा रहे हैं, ठीक है। सियासत में भी तफसील इन 3 फरिश्तों का नाम अक्सर रसूलुल्लाह की दुआओं में वारिद हुआ है। अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्रील व मिकाईल व इसराफील, ए जिब्राईल, मिकाईल और इसराफील के रब, ऐसे दुआएं फरमाया करते थे। यानी उनके, देखे ना, अब ये है वसीला दुआओं में पेश करना, कि जब आप दुआ किया करें तो शख्सियात के नाम लिया करें कि या अल्लाह, रसूलुल्लाह की खातिर हम पे रहम फरमा, और फलां फलां की खातिर हम पे रहम फरमा। आप आमाल को भी पेश कर सकते हैं कि तिलावत कुरान पाक की, या हम जिक्र करते हैं, या दर्स देते हैं, या फिक्र पढ़ रहे हैं, या आपका जिक्र करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, आमाल भी पेश कर सकते हैं और शख्सियात भी पेश कर सकते हैं। अब ये सियासत की अल्लामा इब्न कसीर फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह की अक्सर दुआओं में ये होता था कि अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्रील, जिब्राइल के रब, मिकाईल के रब, इसराफील के रब। आप दे समझ रहे हैं कि ये वास्ते हैं जो कि आप दिया करते थे। तो वास्ता देना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और हमें हुक्म है वास्ते की, वसीले की, तो उसको जरूर आप अपनी दुआओं में रखा करें। अपने ज़ईफ़ों की जो है ना वसीले से मांगा करें कि हमारे ज़ईफ़ों की वजह से, हमारे बूढ़ों की वजह से, हमारे बच्चों की वजह से अल्लाह हमें दे अता करें, ये ऐसे ऐसे बीमारों की वजह से हमें अता कर, इस तरह के शहीदों के वसीले से हमें अता कर। तो ऐसे करते हैं। तो जिब्राईल अंबिया कराम के पास अल्लाह ताला की तरफ से वही ले जाने पर मामूर थे। मिकाईल बारिश और ज़मीन पर नबातात के मुवक्किल हैं, जिससे बंदिगान खुदा को इस दुनिया में रिज़्क मिलता है। इस काम में बेशुमार फरिश्ते मिकाईल के मददगार हैं, जो हुक्म इलाही के तहत उनके अहकाम बजा लाते हैं
اور हवा अबर बारिश के सिलसिले में मिकाईल के अहकाम पर अमल करते हैं, जबकि खुद मिकाईल अहकाम खुदाबंदी के पाबंद हैं। आप समझे बात को कि ये जो तबलीगी जमात वाले अहबाब है ना, वो एक अकीदा सबसे पहले जो है वो लोगों के दिलों में डालते हैं, और वो कहते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, जिसका मतलब ये है, ये अब ये खुद से ऐड करते हैं कि सब कुछ अल्लाह ताला करता है और मखलूक कुछ नहीं कर सकती। यानी कि ये अकीदा गुमराह एक फिरका था, उनका कदरिया, उनका ये अकीदा था कि मखलूक मजबूर है, और जो जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला करता है। तो अल्लाह ताला, हम तो ये जो बुराइयां हैं, बदकारियां हैं, जो जो कुछ भी बुराइयां हैं, गुनाह हैं, वो अल्लाह ताला नहीं करता, वो इंसान करता है। अब हम तो उसकी बात ही नहीं करते गुनाहों की, हम तो ये कहते हैं जो नमाज है, जो वुजू है, जो गुस्ल है, वो भी अल्लाह ताला नहीं करता, वो इंसान करता है। तो ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए। तो वो उसमें क्या था कि हम ये जो हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा वो ये है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया असबाब की दुनिया बनाई है, तो वो मुसब्बिबुल असबाब है, खुद वो मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब पैदा करने वाला है। और लोगों में जो है उसने दुनिया में हर काम के लिए जो है वो सबब पैदा किया है, और वो वजह से होता है। इसलिए अक्सर जो दहरिये होते हैं ना, जो एथियस्ट हैं, वो जब किसी चीज के पीछे लग जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार हाँ देखो ना, इस वजह से हो रहा है, हाँ ये इस वजह से हो रहा है, पौधे को पानी मिलता है तो पौधा बढ़ता है, जमीन अच्छी होगी तो मिट्टी अच्छी होगी तो होगी, वरना अल्लाह निकाल के दिखाए हमें। तो अल्लाह ताला तो निकाल के दिखाता है, वो तो पत्थरों से निकालता है। पत्थरों में क्या पानी देते हो तुम, क्या पत्थरों में तुम मट्टी डालते हो, क्या वहां बीज देते, नहीं, अल्लाह ताला निकालने वाला है। लेकिन वो एथियस्ट क्या करते हैं, वो जो लोग होते हैं जो सिर्फ दहरिये होते हैं, और वो सिर्फ असबाब को देखते हैं, तो वो देखते हैं हाँ देखो ये सूरज निकलता है और ये निकलता रहेगा, इसको कोई छेड़ता नहीं है, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और फला। असल में अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निजाम सबब से पैदा किया हुआ है, सबब के लिए इसके साथ चला रहा है अल्लाह ताला, हिसाब के साथ है, हर चीज हिसाब के साथ है। तो वो जो दहरिये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि हर चीज जो हो रही है वो सबब की वजह से हो रही है, लेकिन उनकी निगाह मुसब्बिबुल असबाब पर नहीं है। आप समझ सकते हैं बात को कि अगर किसी ने हाथ में कलम रखा हुआ है, बॉल पेन से मैं लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, और एक चींटी आती है और वो मेरे कॉपी पे मैं जो लिख रहा हूँ उसके साथ साथ चल रही है, तो वो देखेगी तो कहेगी ओए होए ये क्या लिखा जा रहा है, इतना बड़ा करके लिखा जा रहा है। जब वो पिन की निब को देखते है तो कहता है ओए होए ये क्या है, ये तो बहुत बड़ी चीज लिख रही है। उसके बाद वो जो पेन को देखता है, वो देखता नहीं कि ये इंसान लिख रहा है, वो उसकी उसकी सोच ही नहीं है, वो ये समझ रहा है, चुंटी ये समझ रही है कि ये जो है पेन जो है ना, ये पेन सारा कुछ कर रहा है। हालांकि वो पेन तो सबब है लिखने का, वो ठीक है, वो सही कह रही है, लेकिन उसकी सोच ऊपर नहीं जा रही है। और यही एथियस्ट के साथ हो रहा है कि वो ये नहीं देख रहे कि ये क्या हो रहा है, ये जो दुनिया है असबाब की दुनिया है। ठीक है जी, और हम एक दूसरे के मोहताज हैं, हम जो लोग हैं एक दूसरे के मोहताज हैं। तो ये निज़ाम ही ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। तो ऊपर इंसानों से ऊपर जो है फरिश्ते हैं, और वो ये सारा निज़ाम चला रहे हैं और वो चीज़ें दे रहे हैं। तो आपको कहें रिज़्क कौन दे रहा है, तो रिज़्क अल्लाह ताला ही दे रहा है, लेकिन अल्लाह ताला खुद नहीं दे रहा। अल्लाह ताला ने ये सारे फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। बच्चा पैदा अल्लाह ताला ही करता है, लेकिन वो उसके लिए पूरा प्रोसेस चलता है, वो फरिश्ते भी साथ में, इंसान भी साथ में होते हैं, तब जाके बच्चा पैदा होता है पूरा। तो हमारे वो बच्चे हैं जैसे ऐसी बातें करते हैं, तो गुमराह लोग और तरह की बातें करते हैं। बच्चे होते हैं ना बच्चे, तो वो सोचते रहते हैं कि ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान बनाया है सारा कायद आजम ने बनाया है, कायद आजम ने पाकिस्तान बनाया है। और वो समझ नहीं आती उनको कि ये जो हमारा घर है ये तो फलां ठेकेदार ने बनाया हुआ है। ये अजीब समझ नहीं आ रही कि ठेकेदार ने बनाया या कायद आजम ने बनाया है, वो समझ नहीं आती थी। और अल्लाह ताला ने भी बनाया हुआ है, समझ ही नहीं आ रही कि किसने बनाया है ये। तो ये असल में ठेकेदार हो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हो या मोहम्मद कासिम मोहम्मद अली जिन्ना हो, ये सारे असबाब हैं। और इसी तरह फरिश्ते साथ में मददगार हैं। तो ये सारे ही सबब हैं। ये आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमें वही पहुंचानी है वो पैगंबर को, तो वो खुद पहुंचाता है और पहुंचाता भी है, पहुंचा सकता है, फिर भी जिब्राइल को रखा हुआ है इस काम के लिए। अल्लाह ताला खुद बारिश बरसाता है, अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया बारिश बरसाता हूँ, लेकिन वो बारिश अब जिम्मे लगाई है मिकाईल की लगाई हुई है। इसी तरह हर काम है, ये रूह कब्ज करना है अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल है खुद वो कब्ज करे, रूह कब्ज करे नहीं, इसके लिए इजराइल को रखा हुआ है।
तो इसी तरह हमें जो पैसे मिलते हैं हमें अपने बॉस से मिलते हैं, जो हमारा सीईओ होता है, हमारा ऑफिस का जो हमारा बड़ा होता है, वो हमें पैसे देता है, तनख्वाह। वो मेरे बच्चों की रोजी होती है। और बच्चों की रोजी कहाँ से आ रही है? वो उसके जेब से आ रही है। समझ ही नहीं आ रही। तो बच्चों को समझ नहीं आती कि जो हमारी रोजी है वो अल्लाह ताला दे रहा है। दरमियान में ये वास्ते हैं, सारे के सारे वसीले हैं, सारे के सारे। तो हमें वसीलों का इनकार नहीं करना चाहिए। वसीले का इनकार करना कुफ्र है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया वसीले का जिक्र। तो ये डॉक्टर से कहना कि डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लो बचा लो, तो ये कोई कुफ्र नहीं है, शिरक नहीं है। या माँ को तकलीफ के वक्त पुकारना, ये कोई भी जो है ना, ये शिरक नहीं है। इसी तरह फरिश्तों को भी आप बुला सकते हैं, आप निदा दे सकते हैं। अल्लाह ताला के कुछ गैब के बंदे होते हैं, जैसे हदीस पाक में आता है कि अगर आप सहरा में या जंगल में खो जाएं, तो आप जो है आवाज लगाएं कि या इबादिल्लाहि आईनूनी, या इबादल्लाह आईनूनी, मेरी मदद करो अल्लाह के बंदो। तो वो गैब के बंदे होते हैं जो कि तुम्हारी मदद करते होते हैं। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, ये सारी इनकी वजह से चल रही हैं कि ये अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को असबाब के तहत चला रहा है, सारा का सारा। बहरहाल ये सारे फरिश्तों के बाबत जो है वो तफसील के साथ जो हमने मुख्तसर पढ़ा ना बाकी किताबों से, वही अकीदा है। लेकिन यहाँ अथेंटिक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया उस दूसरी दो किताबों से, वो असल में इस किताब में जो लिखा हुआ है ये भी वही हक है और वो भी हक है। और ये सारा ही हक है जो हमने अकीदा पढ़ा, वो खुलासा मैंने आपको बता दिया कि अहले सुन्नत जमात का अकीदा क्या होना चाहिए इस बारे में। अल्लाह अकबर। तो बहुत सारे फरिश्ते हैं, फरिश्तों के मुतल्लिक बहुत लंबी जो है ना वो बहस है यहाँ पर जो उन्होंने पेश की है। और वो कब्र के जो दो फरिश्ते होते हैं, मुनकर नकीर, उसका भी जिक्र किया। जो किरामन कातिबीन होते हैं, जो इंसान के कंधों पर बैठे होते हैं, उनका भी जिक्र किया। मलिकुल जिबाल का भी जिक्र किया। मलिकुल जिबाल यानी कि पहाड़ों का फरिश्ता। एक रोज क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि उन्होंने ओहद के रोज, जंग ओहद के रोज, यानी जिस रोज मैदान ओहद में कुफार मक्का से मुसलमानों की जंग हुई थी, उस रोज से ज्यादा सख्त दिन कभी नहीं देखा। हाँ, तो कभी देखा भी है। तो फिर खुद ही इरशाद फरमाया, मैंने 2 दिन, हाँ, वो दिन देखा है। लेकिन मैंने अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह में दे दिया था, उसी से तालिब इमदाद था। बहरहाल उस नामुराद और दूसरे कुफार मक्का ने मुझ पर इतना जुल्म किया था कि मैं बता नहीं सकता। ये दो थे, जालिम थे, वो सर पे खड़े थे। तो उस वक्त क्या हुआ, जब ये जुल्म कर रहे थे कुफार मक्का, खुद मेरी कौम की तरफ से भी मुझ पर जुल्म हो रहा था, तो मेरी निगाह आसमान की तरफ गई। मैंने देखा कि एक बादल का टुकड़ा मुझ पर साए किए हुए है, और इस अबर बारे से एक फरिश्ता जमीन की तरफ आ रहा है। जब वो फरिश्ता मेरे करीब आया तो मैंने देखा कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। उन्होंने मुझे सलाम किया, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आप से और आपकी कौम का सलूक देख लिया है। आपके बारे में उसके नाजेबा कलिमात भी सुन लिए हैं। उसने मुझे ताकीद की है कि अगर आपका हुक्म मुबारक हो तो मैं रुए जमीन पर जितने जंगलात हैं उन्हें उठाकर आपके इस कौम पर उलट दूंगा। जिब्राइल सलाम की जुबानी अल्लाह ताला की तरफ से इसके उस कर्म में बेपाया के बारे में सुनकर आपने शुक्रिया अदा किया। और जिब्राइल सलाम से कहा, नहीं, मैं बल्कि चाहता ये हूँ कि उनके असलाब से, यानी कमर से, उनकी नस्ल से अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करे जो सिर्फ उसी को माबूद माने, उसी की इबादत करें और किसी दूसरे को उसका शरीक ना ठहराए। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। तो ये था मलाइका का जो है ना वो जिक्र। और इसके अलावा भी बहुत सारा है जो मैंने उसको महजूफ कर दिया, छोड़ दिया। अल्लाह ताला बस हमें ये सही अकीदा, अहले जमात का अकीदा, इसी पे कायम दायम रखे। और फरिश्तों के बारे में हमारी साइंसी बातें जो आती हैं, वो समझते हैं ये कोई टेक्निकल बातें हैं, ये भी कोई कंप्यूटराइज कोई रोबोट है, नाउजुबिल्लाह। तो ऐसी बातें करना फरिश्तों के बारे में, ये सरासर कुफर है। और हमने उनका ना फरिश्तों का मजाक उड़ाना चाहिए, ना ही फरिश्तों के बारे में कोई हद का मेज कोई कलिमा अदा करना चाहिए, और ना ही उनसे बुग़्ज़ रखना चाहिए, दुश्मनी रखनी चाहिए। सब के सब कुफ्र हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो ये भी बड़ा अच्छा हो गया, हम चलें काफ़ी देख लेते हैं। आपके ज़हन में कोई बात है तो बताइएगा। माइदा, उरूज, आयशा, रिजवान भाई आ गए, रिजवान बाजी। मलिक साहब का वो मलिक साहब जो कह रहे थे अपना
अलैहिस्सलाम के बारे में देखें, अलैहिस्सलाम, हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आप कोई भी, अब देखिए अल्लामा इब्न कसीर कह रहे हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आप बुखारी शरीफ को दिखा के देखेंगे वहां भी लिखा होगा। और ये सिर्फ ऐसा सलाम जो है वो आप जिंदों पर नहीं बल्कि मुर्दों पर भी सलाम ही पढ़ते हैं, उनके साथ भी सलाम ही पढ़ते हैं। इसी तरह फरिश्तों के साथ भी आप सलाम पढ़ते हैं, और हर जगह लिखा दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किताब में ऐसा होगा, हर जगह आपको दिखाई देगा। इसी तरह ये तो गैर पैगंबर है ना, पैगंबर तो नहीं है फरिश्ते, तो पढ़ सकते हैं सलाम, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है, जो औलिया अल्लाह हैं उनके साथ भी हम लोग सलाम पढ़ते हैं। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, आप कहीं भी मरियम का नाम देखेंगे साथ में लिखा होगा अलैहिस्सलाम। तो ये कहाँ से आया? और ये हम सब करते हैं। और हजरत वो जो फरिश्ते आए थे ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए थे, उन्होंने कहा कि आपके अहले बैत पर सलाम हो। तो अहले बैत जो घर वाले पैगंबर के घर वाले होते हैं उनके साथ अलैहिस्सलाम लगाया जाता है, उसी वजह से लगाया जाता है। तो हमारा तो हमारी नमाज भी अहले बैत पे सलाम से ही शुरू होती है, और उन पे दुरूद पढ़ने से जो हमारी नमाज खत्म होती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हम पढ़ सकते हैं। और भी जो है ना, इसके साथ सलात भी पढ़ सकते हैं, सलात और सलाम भी पढ़ सकते हैं, दोनों को पढ़ सकते हैं। आप बाज ये जो कहते हैं, बाज लोग कहते हैं भाई सलात नहीं होनी चाहिए। सलात तब हम पढ़ सकते हैं जब रसूलुल्लाह के साथ वो आए, चाहे वो सुहाबा हों या अहले बैत हों, तो फिर सलात साथ पढ़ा करें। सलाम पढ़ सकते हैं, सलाम में तो इख्तिलाफ नहीं है, सलाम आप कर सकते हैं सब पे। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भैया, हम पढ़ते हैं सलाद भी पढ़ सकते हैं और सलाम भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। और सबके लिए जायज़ है, वो चाहे पैगंबर हो या गैर पैगंबर हो, उनके घर वालों के लिए, फरिश्तों के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको एक फतवा भी दिखा सकता हूँ, अभी 1 मिनट रहता है तो मैं ज़रा दिखाऊंगा आपको। अलैहि अलैहिस्सलाम। आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्क दिखाई देगा कि अहले जमात के अंदर जो मकातिल फिक्र हैं वो भी थोड़ा सा गैर पैगंबर। अब देखो ये देवबंद का जो फतवा है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वो दिखाता हूँ और फिर आपको ये भी आपको दिखाता हूँ। और आपको ये भी देवबंद का है। बहुत अच्छे अच्छे फतवाजात हैं। चलो मैं आपको एक दो फतवा दिखाता हूँ। बट टाइम पूरा हो गया, मैं बस एक दो मिनट लेता हूँ फिर उसके बाद बंद कर रहा हूँ। अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, या अल्लाह। बिजली चली गई है तो पता नहीं, शायद वो नेट का हो। या अल्लाह, जितनी जल्दी मैं करना चाह रहा हूँ वो उतना ही हमसे है गए। या रब्बी, या अल्लाह। चलो, अगर चलो नहीं है अच्छा, ये मैं देखता हूँ यहाँ पे। ये
अब ये देखिए बरनोटे वाले क्या कहते हैं, अलैहिस्सलाम मानवी एतबार से दुआया कलिमात हैं। इस एतबार से मज़कूरा दुआया कलिमात गैर नबी नबी सब के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस्तिलाही एतबार से इस कलमे का इसालतन इस्तेमाल वो क्या है, अम्बिया कराम सल्लल्लाहु के साथ ख़ास है और इसी पर सल्फ़ सालिहीन का तामुल रहा है, खुसूसन जबकि गैर नबी के लिए मज़कूरा कलमा इस्तेमाल करना अहले बिदअत और दलाल का शिआर बन चुका है। यानी ये इशियों की तरफ उनका इशारा है कि वो तो हर एक के साथ अलैहिस्सलाम लगाते हैं तो हमने नहीं लगाना, ये गलत तरीका है। यानी उनकी बुग़्ज़ में, उनकी मुखालिफत में, शियों की मुखालिफत में कह रहे हैं कि हम लोगों ने अहले बिदअत और अहले दलाल उनका शिआर तरीका बन चुका है तो हमने छोड़ देना है। ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग ऐसे नहीं है, ठीक है। अ, किसी बुजुर्ग के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लफ्ज कहना शरअन ममनू नहीं है। अब देखा आपने, शरीयत में ममनू नहीं है, लेकिन ये उलमा कराम जो है देवबंद के, वो कह रहे हैं हमने जो है वो चूंकि उनकी मुखालिफत में हमने छोड़ दें, तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अलैहिस्सलाम का माना उस पर सलामती हो। आप जब आपको की सलाम करता है कि मेरा सलाम पहुंचा दे, तो वो कहेगा अलैका व अलैहिस्सलाम। और हम आपस में भी एक दूसरे को सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, इसके भी यही माने हैं। तो शरअन इसके कहने पर तो कुछ ममानियात नहीं है। अलबत्ता अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ अलैहिस्सलाम अम्बिया के साथ खास है और रदियल्लाहु अन्हु के अल्फाज सहाबा कराम के साथ खास है। और ये शायर अहले सुन्नत में से है, जो कोई इसके खिलाफ करता है वो शायर अहले सुन्नत के खिलाफ करता है। यानी ये देवबंद का अपना फतवा है, तो हम देवबंदी नहीं है। तो वो अपना कह रहे हैं तो उनका ये अकीदा है कि वो कहते हैं भाई नहीं कह, हम कह सकते हैं, हम कहेंगे क्या कहते हैं और कह सकते हैं, गैर नबी के लिए भी कहते हैं और ये सारे फरिश्तों के साथ भी कहते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ये सुन्नी है, देखता हूँ इन्होंने क्या कहा हुआ है। कहते हैं कि नाम के साथ दुरूद या सलाम सिर्फ अम्बिया मलाइका के साथ खास है और इनके अलावा किसी और के साथ मुस्तकिल तौर पर सल्लल्लाहु अला फलान सिर्फ सलात या अलैहि सलाम पढ़ना या लिखना जायज़ नहीं, गुनाह का काम। लिहाजा या अली अलैहिस्सलाम या हसन अलैहिस्सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम या फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कहना लिखना दुरुस्त नहीं है। बाद उलमा ने इसको जायज़ लिखा है, देख रहे हैं आप, वो लेकिन सही है कि जायज़ नहीं है। अब देखिए क्यों, अब देखा ये जितने भी इसने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो सब के सब शिया करते हैं ना, तो वो कहते हैं इनकी मुखालिफत में हम लोग जो है नहीं कहेंगे, ये तो गलत तरीका है। हमें इसलिए मुखालिफत में नहीं कर सकते, हम ना सहाबा कराम के खिलाफ कोई बात इनके खिलाफ होने की वजह से कर सकते हैं, और ना ही हम अहले बैत की मुखालिफत में बुग़्ज़ में कोई बात करेंगे। हमारे दोनों के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है और अकीदत का ताल्लुक है, तो हम लोग किसी की बेअदबी नहीं करते। आप देख रहे हैं ना कि फतवों से आपको बू आएगी थोड़ी सी, वो आपको रंग दिखाई देगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और ये सख्त बरेलवी हैं जिसको मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, हज़रत अब्दुल्लाह अब्बास ने फरमाया कि नबी के अलावा किसी पर दुरूद दुरुस्त नहीं है। दुरूद यानी दुरूद जो सलात का लफ्ज़ है, वो होना चाहिए, सलात होना चाहिए, लेकिन वो आना चाहिए रसूलुल्लाह के साथ। अगर आ जाए रसूलुल्लाह उनकी आल पर, उनके असहाब पर सलात हो तो वो साथ में आना चाहिए। सलाम के बारे में तो किसी को नहीं होना चाहिए ना, सलाम तो हम सब पे कहते हैं, तो वो सबका होना चाहिए। बहरहाल ये उन्होंने लिख दिया, तो चलो। अच्छा, ये कहते हैं इमाम हनीफा, उनके असहाब और इमाम मालिक, इमाम शाफी अक्सर का कौल यही है कि गैर नबी पर इस्तिक़लालन सलात नहीं पढ़नी चाहिए, अलबत्ता तबान पढ़नी चाहिए। ये तबान का मतलब ये है कि मैंने बताया जैसे कि तरीके के साथ, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद वाला आली अबी बकर वाला उमर व उस्मान व अली, इस तरह कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं कह सकते उसके किसी के नाम के साथ, और हम नहीं कहते ऐसे। सलात के लिए हम किसी के साथ सलात का नहीं लगाते, हम सलाम कह सकते हैं, हम सलाम कहते भी हैं, लेकिन सलात का नहीं कहते। तो सलात के बारे में फतवा तवज्जात हैं तो वो ठीक है, लेकिन हम जो सलाम के बारे में है वो सबके साथ कहना चाहिए, इसमें कोई जन दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो असल में वो कहते हैं कि ये चूंकि शियों का काम है इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ भी देख रहे हैं आप, देखो ये इन्होंने सदा ये बस इस वजह से ना, हम कहते हैं कि हम न सुन्नी, हम न देवबंदी हैं न बरेलवी हैं, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। और हम लोगों को जो है ना, हम उससे नहीं जाएंगे न किसी के बुग़्ज़ के। अभी अभी ये जो मसला अभी चल रहा है ना, इस वक्त जो फितना चल रहा है हमारे देश में, वो चल रहा है नासिबियत का और राफिजियत का मुकाबला है। और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई जो है बंदा या तो राफिजी बन जाए और यानी कि सहाबा कराम को गालियाँ देने लग जाए और सहाबा कराम की बेअदबी करे, और या दूसरा ग्रुप है वो कहता है भाई अहले बैत के जो है ना उनको जो है ना उनकी शान को घटाएं हम लोग, और उनको भी आम सहाबा कराम के दरमियान बराबर ले आएं और उनको भी साथ मिलाएं। हालांकि ऐसा किसी का अकीदा नहीं होना चाहिए।
हाँ, अहले बैत का मकाम अपना मकाम है, तो दोनों सब में रखिए। वो चाहते हैं कि राफिजियत में चले जाएं या नसीबियत में चले जाएं, ठीक है। तो वो ऐसे ही, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, और हम लोग जो है दोनों का जो है वो हम अकीदत का ताल्लुक है, मोहब्बत का, मवद्दत का ताल्लुक है। ये काश मैं वो मुझे मिलता फतवा जब मिलता, मैं आपको वो फतवा देता जो हमारा जो मैं जिसको मैं कह रहा था कि वो होना चाहिए। मैं वो आपको जो है ना उनका वो अगर मेरे सामने आता है तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको पेश कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया सही, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये आज जैसे आता है ना, मैं आपको फिर इंशाल्लाह ताला वो सारा निकाल निकाल के आपको वो देता हूँ इंशाल्लाह। चले, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला, और मिलते हैं कल 9 बजे इंशाल्लाह ताला नए सबक के साथ इंशाल्लाह। हाँ, वो जैनुल आबिदीन का जो नाम रखा हुआ है वो भी अब उस पर तो अच्छी खासी चित्रोल हो गई ना, अच्छी खासी हो गई कि जैनुल आबिदीन नाम रखना जो है असल में ये मसला है। वैसे ऐसा नहीं है कि मसला नहीं है, ये मसला जो है नामों के सिलसिले में ये उसूल भी देते हैं कि ऐसे नाम रखना जिससे तफख्खुर की बू आए, तकब्बुर की बू आए, वो ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। लेकिन अब जैनुल आबिदीन का जो नाम है ना, वो असल में अगर तो आम सा नाम होता ना शमसुद्दीन और नाम होता ऐसे, तो हम चलो कह देते तो किसी को नागवार ना गुजरता। लेकिन जैनुल आबिदीन अहले बैत के सरताज हैं, उन्हीं से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक चली है, और वो बीमार करबला वो उनका बहुत बड़ा मुकाम है इस उम्मत में। तो आप ये कह दें सरासर सिंपल लिख लें एक जुमले में कि जैनुल आबिदीन नाम रखना जो है वो अच्छा नहीं है, ये तो बदनसीबी की इंतहा है ना। अब हमें याकूब का नहीं पता, यूसुफ का नहीं पता, इब्राहिम का मतलब भी नहीं पता होता, हमारी अरबी ज़ुबान के भी नहीं है, कुरान मजीद से और अरबी ग्रामर से भी पता है हमें कि वो अरबी ज़ुबान के अल्फाज भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग वो नाम रखते हैं, और हम बग़ैर पूछे, बग़ैर मतलब जाने रखते हैं, क्योंकि वो पैगंबर का नाम है, निस्बत की वजह से रखते हैं। निस्बत आ गई तो माने की ज़रूरत ही नहीं रहे बाकी बचती। तो यहाँ ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन आबिदीन की जीनत, वो असल में सिर्फ मतलब की वजह से हम नहीं रख रहे, हम तो ज़ैनुल आबिदीन के निस्बत की वजह से नाम रखते हैं, जो भी रखता है। तो नीचे उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि इसको गुलाम ज़ैनुल आबिदीन रखा करें। ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है, ये अच्छी बात है कि ऐसे रखना चाहिए, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना और निस्बत की वजह से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और गुलाम हसन, गुलाम हुसैन, यह नाम चले आ रहे हैं शुरू से, तो वो तो चल रहे हैं। इस तरह गुलाम ज़ैनुल आबिदीन भी रख सकते हैं, वो अच्छी बात है, वो रख सकते हैं, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन नाम रखने से लोगों को रोकना नहीं चाहिए। मैं अब इस तरह सर जो आपको बात बताऊं ना, मैंने आपको बताया कि इस वक्त का जो फितना है ना, इस वक्त पाकिस्तान में जो फितना चल रहा है, वो यही चल रहा है कि वो आपको एक, वो चाहते हैं कि आप किसी एक में शामिल हो जाएं, या तो सहाबा कराम के बेअदब बन जाएं, या फिर आप जो है वो अहले बैत के बेअदब बन जाएं। हम कहते हैं नहीं भैया, ये हम लोग जो है ना, हमें मुशाजरात सहाबा कराम से निकालें, अल्लाह ताला खूब जानता है उनके अमाल को, और हमें जो है वो उससे बचाए रखें। हम उनके बारे में अच्छी ही गुफ्तगू करेंगे, और हम अच्छी ही बात करेंगे, और हमें पता है कि कौन साबिकुन अल अव्वलून है, कौन किस दर्जे पर वाक़या है, कौन ईमान पहले लाया, कौन बाद में लाया, किसने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो सबको पता है। किन का ताल्लुक़ ख़ानदान रसूल से है, किन के बदन में रसूलुल्लाह का खून जारी है, हम सबको पता है उनका। तो उनका मुकाबला नहीं कराएंगे, सहाबा कराम के बारे के साथ उनका मुकाबला नहीं कराएंगे। जो भी मुकाबले में पड़ गया तो वो जो है ना, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, वो गुमराह हो रहे हैं उनके साथ। और बेअदबी जो है ऐसी खतरनाक बेअदबी कि अगर थोड़ा सा भी बुग़्ज़ रख लिया ना, अभी हमने पढ़ा है कि सहाबा के ये जो है अपना फरिश्तों के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। तो ये तो आपके दीन के इमाम हैं आपके, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा है, उनके साथ थोड़ी सी भी अगर आप अदावत रखते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं या उनके साथ बेअदबी करते हैं, तो आप अपने ईमान पर रोएं, आपका ईमान जो है वो चला जाएगा इस बेअदबी से। तो ये ज़रा ख्याल रखना चाहिए, जिनका जो मकाम है वहीं पर रखना चाहिए उनको। ये पूरी उम्मत का है, ऐसा नहीं है कि हमारा है ऐसे। और मैं, हमारे अज़हर का भी यही है बिल्कुल। मुफ्ती जमहूरिया जो मिस्र के मुफ्ती हैं, अल्लाह करे, वो मैं क्लिप निकाल के भी आपको उसका तर्जुमा भी लिख दूंगा, चलो लोगों को काम आएगा फिर, तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये फितना चल रहा है, और लोगों ने ये यही कर रहे हैं। अब ये अब इनको ना जमातों को ड्यूटी दी जाती है, तो ये दावत इस्लामी वाले इसमें पड़ गए, पता नहीं क्या हो गया उनको, कि वो जो है इस वक्त दावत इस्लामी वाले जो हैं वो मुसलसल जो है वो
बनु उमैया की शान को उठाने में लगे हुए हैं, उर्स करवा रहे हैं। हैरानगी की बात है, यानी पूरी उम्मत ने कभी उनको ऐसे याद नहीं किया। ये लोग उनका नाम और झंडे और ऐसे गलत नारे कि सारे अहले सुन्नत ने तौबा की कि हम इनके साथ नहीं है। कम से कम ये जो हालांकि जो है ना, ये बातें हैं सारी की सारी, तौबा करें इन नारों पे। और ये सियासत मुआविया जिंदाबाद इस तरह की बातें करना, ये गुमराही है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है मुखालिफत है सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की, और वो तो अमीरुल मोमिनीन है। तो इसलिए आप ध्यान में रखें कि जो आप बोल रहे हैं, क्या वो आप हजरत सैयदना अमीर मुआविया के बारे में आप जो है क्या उनकी शान के को उठाने में जो है ना कर रहे हैं, या आप रसूल हजरत अली शेर खुदा की शान को घटाने में लग गए हैं। तो ध्यान रखिए अपनी बातों पर, अपने कामों पर। लेकिन चाहे उनकी शायद ड्यूटी लग गई हो इस तरह की, तो अल्लाह ताला बचाए रखे हमें किसी भी सहाबी की बेअदबी करें हम लोग, या फिर हम किसी अहले बैत की जनों की बेअदबी करें, या किसी फरिश्ते की बेअदबी हमारी ज़ुबान से। अल्लाह ताला बचाए रखे सब, अल्लाह ताला महफूज रखे। चले जी, बहुत देर करा दी आपको मैंने, आप सलामत रहें। और इंशाल्लाह ताला ये बातें चलती रहेंगी, इंशाल्लाह ताला इस पे हम बातें करते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा आज का बिल बैठना। जुमे की रात है, अब आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का वजीफ़ा करें, ज़रूर करें। और दुरूद शरीफ आप अगर आपके पास अगर जमा करके रखेंगे और भेजें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम लोग जमा कर रहे हैं, रुबीना बाजी भी कर रही है, जमा करती हैं, और आसमा बाजी भी हैं सारे। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दरूद शरीफ को उसको आप ना गिन के रखा करें, ये मोटिवेशन मिलती है आपको इससे। हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जब आप लोग एक टारगेट रखते हैं अपने सामने, तो टारगेट को जो है ना, उससे आपकी जो है रफ्तार बढ़ जाती है। आपके हाथ में तस्बीह रहे, काउंटर रहे, तो इससे आपका जो है वो मोटिवेशन लेवल ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा। जिन लोगों के पास तस्बीह नहीं है, वो कभी भी तस्बीह वालों से ज्यादा जिक्र नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। तो आप लोग जो है हमेशा तस्बीह हाथ में रखिए, काउंटर हाथ में रखिए, और दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने पूरा तरीका जो है वो सिखाया कि कैसे दुरूद शरीफ का वजीफा करना चाहिए, वो सारा मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। इंशाल्लाह मजीद भी इंशाल्लाह ताला मैं डालता रहूंगा, और लिख के भी आपको भेजता रहूंगा साथ साथ में। जो हमने ग्रुप बनाया ना तिलावत और वज़ाइफ, उसमें मैंने डाला हुआ। तो बहरहाल आप सब दुरूद शरीफ पढ़ें, जुमे की रात है, और सूरह अल कहफ भी पढ़ें, और नेक अमाल में जो है वो सबकत ले जाएं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।